Assalamualaikum dear students. Hope you all are doing great. I am your course instructor Amreen Ahmed and I welcome you to the last lecture of lesson number 4 end of term. Today we'll be discussing the last paragraph and inshallah we'll be ending it today. So before proceeding with the last paragraph, let's recapitulate what we discussed in the first two paragraphs. The writer David Dashes is being nostalgic here, and he is actually recollecting his childhood memories, and he's telling you about his school life. He is of the opinion that school life was quite cumbersome and tiresome, and they felt very much exhausted over there. The school routine used to be hectic and quite tiresome, and that is why he did not like that much. So they used to wait very anxiously about of the holidays, and then he talked about number of holidays or different types of holidays they used to have. They used to have weekends or the holiday of Saturday and Sunday after the Friday. So they enjoyed a lot the Friday night because the next day was going to be the off day. Then he talked about some of the unexpected holidays, half holiday or 2 or 3 hours relaxation in the school days. And then he talked about Christmas and Easter holidays, and later the most cherished holidays were actually the holidays of or the vacation of summer that were almost of 2 months. So let's start our third paragraph. In the third paragraph also he is talking about how they used to spend the 2 months holiday. This is page number 14 with lesson number 4 end of term. David Dashes, be on page everyone, page number 14. 2 months seemed a long time in those days. Indeed, I used to have the feeling that for all practical purpose I think we have done it. So I'll be starting it from the line number 7. It all seemed too good to be true. Okay, it all seemed too good to be true. ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि हम जो थे वो इतने अरसे से जो अपनी समर का इंतज़ार करते थे समर की छुट्टियों को, तो वो छुट्टियां जो हैं गर्मियों की वो बालाखिर आ गई हैं, और वो इतना उसमें मज़ा और इतनी अच्छी वो छुट्टियां होती थी, या इतना हम उसमें एंजॉय करते थे, और वो इतनी दे वो टू गुड टू बी ट्रू, सिंपली इतने खुश हम होते थे कि लगता था कि ये जो हम टाइम गुजार रहे हैं ये शायद सच नहीं है, हम किसी ख्वाब या ख्याल में हैं. ओके, विश टू गुड टू बी ट्रू इज़ बेसिकली एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. एक इडियोमेटिक एक मुहावरा है जो हम अक्सर करते हैं कुछ बहुत अच्छी चीज़ों के लिए कहते हैं. ठीक है, ओके लेट्स प्रोसीड. Wishes did not come true in this life. I knew that. वो कहता है मुझे पता है कि तमाम जो ख्वाहिशात हैं या जो भी ख्वाहिशात हैं इंसान की इस ज़िंदगी में पूरी नहीं होती. I knew that. मुझे ये पता था. All my early childhood I longed desperately for a tricycle. वो कहता है मैंने अपनी सारी जो चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड मतलब जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, तो मैं चाहता था कि मेरे पास एक ट्राईसाइकिल. और ट्राईसाइकिल आपने देखी होगी एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें 3 पहिए होते हैं. ट्राई मीन्स 3. तो फिर क्या हुआ, वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो विच माई पेरेंट्स कुड नॉट नेवर अफोर्ड. और ज़ाहिर उसके पेरेंट्स इतने अमीर नहीं थे या उनके इतने रिसोर्सेज नहीं थे, वो उसको कभी दिला नहीं सके. लेटर द विश वाज ट्रांसफर टू अ बाईसाइकिल. फिर जब वो कुछ बड़ा हुआ तो अब उसे ट्राईसाइकिल नहीं बल्कि अब क्या चाहिए थी, बाईसाइकिल. एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड. और ये ख्वाहिश भी उसकी पूरी नहीं हुई. परमानेंटली डिसअपॉइंटेड माने वो मेरे लिए बिल्कुल भी, मेरे लिए ये सब भी एक मायूसी ही रही. मैं कभी ख़रीद नहीं सका या मेरे वालिदैन कभी मुझे दिला नहीं सके. I bought my first bicycle for myself when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University. आप देखें कितनी महरूमियत में लोगों की ज़िंदगियां गुजर जाती हैं. 21 की एज में शायद से बाईसाइकिल की इतनी नीड या इतनी ख्वाहिश ना हो, लेकिन चूंकि उसकी बचपन की ख्वाहिश थी तो फिर उसने 21 की ईयर में, जब वो 21 साल का था, उसे प्राइज़ मनी मिला, एक
पैसे उसे इनाम के तौर पे मिले, जिससे उसने फिर बाईसाइकिल जो है वो ख़रीदी। लेकिन वो अपने चाइल्डहुड में ही वॉज नेवर एबल टू राइड अ बाईसाइकिल बिकॉज हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप। यहाँ से पैराग्राफ जो है वो बहुत पैथेटिक हो गया, कुछ पैथोस है इसमें। पैथोस मतलब थोड़ा दुख है, आप टेंडर फील करते हैं। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप विद एम्प्टी पॉकेट। कितनी दिन बार मैं स्वीट शॉप्स के बाहर खड़ा रहा हूँ। और ज़ाहिर है बच्चे चीज़ें जब देखते हैं तो दे लॉन्ग फॉर देम, दे विश फॉर देम, एंड certain and rather most of the time they don't have money, so this create a kind of sense of deprivation। ये महरूमी का एक सेंस क्रिएट करता है जो मेरा नहीं ख्याल के सारी उम्र फिर आपसे चिपटा ही रहता है, ये जाता नहीं। वो यही बता रहे हैं कि मैं स्वीट शॉप्स के बाहर अक्सर खड़ा रहता था और मेरी जेब में पैसे नहीं होते, लॉन्गिंग फॉर अ पेनी, और फिर मैं ख्वाहिश करता काश मेरे पास एक पेनी हो या दो पेनी हो, टू मटीरियलाइज somehow और hung on the outskirts of crowd around an ice cream barrel। तो वो कहता था ताकि मैं इससे क्या ले सकूँ, ये टॉप मटीरियलाइज मतलब चीज़ों को हकीकत बनाना, यानी कि जो कैंडीज़ हैं या जो मुझे नज़र आ रही हैं मैं इनको पा सकूँ, या ये जो मेरी विशेज़ हैं मैं इनको हकीकत बना सकूँ। फिर वो कह रहे hung on the outskirts of crowd around the ice cream, और मैं कभी कभार आइसक्रीम बार्स के बाहर खड़ा रहता था, आइसक्रीम बैरल जहाँ आइसक्रीम बिकती थी, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired me offer me a cornet or slider free। और मैं सोचता था काश मुआवजा हो जाए और ये जो एक मिराकुलस मतलब मुआवजाती तौर पर ये जो आइसक्रीम बेच रहे हैं मुझे एवं फ्री में एक कॉर्नेट और स्लाइडर जो है वो दे दे। स्लाइडर और कॉर्नेट बेटा ये these are the kinds of ice cream। These things never happened, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। The few pence a week pocket money we received was to be put into money box and saved in during our early childhood। जो थोड़े बहुत एक दो पेंस इनको मिलते थे पूरे हफ्ते के, उसी को ये क्या करते थे जमा कर लेते थे एक गुल्लक में, एक मनी बॉक्स में। एंड ड्यूरिंग अवर अर्ली चाइल्डहुड, और जब हम बहुत छोटे थे, लियोनल, सिल्विया एंड आई, ये तीनों बहन भाई, एंड नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवर सेल्फ, हमारे पास कुछ भी पैसे ऐसे नहीं होते थे जो हम अपने आप पर खर्च कर सकें। सो सी पीपल सफ़र अ लॉट, दे people face too much hard times। So I think we should be very much thankful how blessed we are। Okay, let's proceed। Yet summer and the summer holidays did come। लेकिन फिर भी समर आ जाती थी, गर्मियाँ आ जाती थी और गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाती थी। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, और स्कूल का पूरा साल वाक़तन ख़त्म हो जाता था। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड सूटकेसेस आउटसाइड नंबर 6 मिलर और व्हील प्लेस वेटिंग फॉर द टैक्सी ग्लोरियस व्हीकल। टैक्सी जब आप हायर करते तो आपको बड़ा प्राउड फील होता है, ये राइटर कह रहा है। दैट वाज टू कन्वे द फैमिली एंड इट्स लगेज टू द रेलवे स्टेशन। लेकिन बोलते हैं बहरहाल बहुत सारी ख्वाहिशात अगरचे पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन मुझे कोई वो नहीं है, इसका कोई रिग्रेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी एक जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी ये, या जो हम बहुत मज़ा किया करते थे, या हम चाइल्डहुड की जो बेइंतहा खूबसूरत याद है वो है समर हॉलीडेज़। क्योंकि समर हॉलीडेज़ में क्या आता था, समर हॉलीडेज़ आ जाती थी, स्कूल एंड टर्म हो जाता था, और हकीकतन क्या चीज़ होती थी, एक टैक्सी हमारे लिए वेट कर रही होती थी हमारे घर के बाहर, और सूटकेस होते थे और ट्रंक्स होते थे, और हम सब टैक्सी में भरकर कहाँ जाते थे, रेलवे स्टेशन, टू spend their vacation somewhere। So we have ended the lecture today, and now we will be doing its exercise। I think these words are not very difficult because we have been doing it throughout the lecture। So let's see, I think I don't get any new word। We can grind, relax, ये सारे words जो हैं वो हम जो है during the लेक्चर में आपको बताती रही हूँ। फिर भी हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। ओमिनस बीइंग और गिविंग बैड ओमन, यानी ओमिनस मतलब बदशगुनी। हेराल्ड कहते हैं बेटा प्रोक्लेम द अप्रोच ऑफ, यानी कि कहना कि भाई मेरी इतनी अप्रोच है। डेमिनेशन कंडेम टू हेल, डेमिनेशन मैंने आपको बताया था, बेसिकली किसी को मातूब कर देना, उसको डेमिनेशन कहते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने शैतान को डेम कर दिया, मातूब कर दिया। एंटिसिपेशन पहले से ही पता लग जाना किसी बात का, या पता लगना नहीं बल्कि अंदाज़ा करना या सोचना कि ऐसा होगा।
सेंसेशन अपने आप को मतलब कॉन्शियसली फील करना कि जनाब यहाँ कुछ हो रहा है, बीइंग कॉन्शियस ऑफ सम इफेक्ट ऑन वंस बॉडी। फॉर एग्जांपल आपको कोई गर्म चीज़ टच होती है तो उसकी सेंसेशन होती है आपको। आई थिंक वी हैव डन रेस्पाइट क्राइसिस रूटीन। फेलिसिटी मैंने आपको बताया इंटेंसिव। सेवर सेवर सेबोर होता है बेटा ये वर्ड, स्पेशली टेस्ट और स्मेल ऑफ समथिंग। कोई टेस्ट हो, स्मेल हो, अच्छी क्वालिटी की, डिफरेंट किस्म की। स्टर्नस बताया मैंने आपको, हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मतलब टायरसम किस्म का जो काम होता है। मिथिकल विदाउट एग्जिस्टेंस इन फैक्ट, पुरस्कार, मटीरियलाइज, टेक फॉर्मर शेप। आउटस्कर्ट्स कहते हैं बेटा मज़ाफ़ात को, यानी एक मेन सिटी होता है फिर उसके आउटस्कर्ट्स होते हैं। आउटस्कर्ट मतलब मेन जगह से थोड़ा सा बाहर। I think we have done all the other words. Answer these questions. There are 6 questions. You can see what was the Dash's attitude towards the weekend as a school. By what did he long for? Dash's का attitude weekend पर क्या होता था? बिल्कुल सेम वही होता था जो स्कूल बॉयज़ का होता था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता था और ये लॉन्ग करता था कि ये वीकेंड जो है वो कभी ख़त्म या ना हो या थोड़ा लंबा हो जाए और उन्हें मंडे मॉर्निंग जो है वो जाना ना पड़े। ठीक है, सो you may reread first paragraph to answer this question. What was his general view of school life? स्कूल लाइफ का जनरल व्यू उसका ये था कि स्कूल लाइफ उसे बुरी नहीं लगती थी, ना ही स्कूल का होमवर्क वगैरह, लेकिन उसे टफ रूटीन जो है सुबह सुबह उठना और जाना, 6-7 घंटे वहाँ बैठना और ऑल दैट डिसिप्लिन एंड टाइंग टू द सीट्स एंड डूइंग द रूटीन वर्क, ये उसे टायरसम और कम्फर्टसम लगता है। ही लाइक हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम कहाँ से मिलती थी उसको? स्कूल रूटीन से फ्रीडम मिलती थी। अच्छा, वो हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज? समर हॉलीडेज वो कैसे स्पेंड करता था? वो स्ट्रोल्स करता था, मीडोज़ के पास जाता था और वो लोग वेकेशन पे कहीं जाते थे अपनी सारा सामान वगैरह लेके। विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ राइट डे, व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग फॉर बट ही कुड नॉट हैव? क्या ये अक्सर क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि कैसे वो साइकिल और ट्राईसाइकिल चाहता था पर वो उसे नहीं मिली। वो कैंडीज़ लेना चाहता था पर उसके पास पैसे नहीं होते थे। आइसक्रीम्स के लिए वो सोचता था शायद कोई उसे दे दे पर उसे कभी नहीं मिली। व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी? पॉकेट मनी से क्या करता था बेटा वो? दे यूज्ड टू सेव ऑल हिज सिबलिंग्स अलोंग विद हिम। दे यूज्ड टू सेव ऑल दैट मनी इन अ मनी बॉक्स, सो दे डिड नॉट हैव much money or enough money to spend for themselves on themselves. So we are done with this chapter, end of term, and tomorrow we'll be starting maybe your novel section. So till then, take care. Allah Hafiz.